So hi everyone, speaking to this episode of Page 3 here at News 9 with me, Sakshi Singh Litoria, is team Khijbich. I have Aryan, Shivam, Kabir. Thank you so much for joining us here at News 9. क्या खिचपिच होने वाला है, क्या खिचड़ी मचने वाली है मूवी में? I would want you, Aryan, to begin. अब यार खिचपिच देखनी पड़ेगी उसके लिए कि खिचड़ी क्या मची है. हम इतना तो नहीं बता सकते, बट इट्स अ टेल ऑफ फादर्स एंड सन्स एंड बेसिकली अलग अलग 3 प्रोटैगनिस्ट हैं जिनकी अलग अलग लाइव्स हैं एंड उनके बॉन्ड्स विद देयर ओन फादर्स. तो उनके फादर्स जो हैं वो भी काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं. तो कहीं ना कहीं लोग जब जाएंगे तो उनके पास 3 कहानियाँ होंगी जिनके साथ वो रिलेट कर सकते हैं. कुछ चीज़ें एक कहानी, कुछ चीज़ें दूसरी कहानी. लेकिन हाँ, कितनी घिचपिच है, क्या खिचड़ी है, ये तो फिल्म देखनी पड़ेगी. So please watch the film. Definitely. Shivam, if I could ask you how personal this film is, since you have spoken about, Aaron has highlighted that it's going to be about the bond between sons and their fathers. So how personal is that going to be for you? Personally, my relation with my father is kind of similar to Aryan and Gurpreet's father. Okay. The relation what my father in the movie has with me is very much different. Okay. So this role was kind of very different from my real life. So I realized this, that we should respect our parents a lot, and we should understand what efforts they have given in their life to make us what we are today or what we will be someday. That is what I have taken from the film. And also I think it's when we are 18, right, we don't really understand from someone else's perspective. The only thing that we focus on is our own thing, right? But when we were shooting for the film, when we read the script, we also were able to understand from the parents' perspective, right, why the father behaves a certain way. It doesn't have to be right or wrong, it's just that there must be something that makes them behave how they behave. So that understanding, that sort of, I think we all 3 of us understood maybe somewhat, and even in our personal lives it sort of reflects, right? Like I showed it to my father, and the bond that I have with my father in the film is completely different. And my dad was like, okay, ये काफी different है. And I said, पापा लेकिन कुछ चीजें मुझे भी समझ आएंगी अब कि आप क्यों ऐसा मुझे बोल रहे थे उस टाइम पे. तो वो एक बॉन्ड है जो अब पर्सनल लाइफ तक थोड़ा ट्रैवल हो गया फिल्म के थ्रू. So अगर मैं पूछूं कि रिस्पेक्टिवली अपने अपने फादर से आपने क्या टीचिंग ली है, कबीर, if I could ask you first, because you guys have veterans playing your fathers. ठीक है. उनके सामने were there any nervousness, and how different the fathers characters are going to be? The thing is कि जितने भी 3 कैरेक्टर्स हैं, उन तीनों का अपना एक मतलब obviously there's a character sketch for, and it is based on individuality of each character. और उनके जो फादर्स हैं वो completely contrast है, मैंने जो नोटिस करा है तीनों स्टोरी लाइंस के बीच में. और वो इसी हिसाब से बने हैं कि अगर किसी का एक पल्ला भारी पड़ रहा है तो दूसरे का हल्का है, एक का हल्का है दूसरे का भारी पड़ रहा है, तो बैलेंस थिंग्स आउट कि अगर बेटे में कोई कमी है तो फादर पूरा कर रहा है, फादर की कोई कमी है तो बेटा पूरा कर रहा है. And that's how it happens in real life as well. मेरे फादर जो हैं फिल्म में सत्यजीत शर्मा प्ले कर रहे हैं, एंड उनका या स्टैचर और उनका ना बैरिटोन, वो सब, मतलब आप मेरे बैरिटोन के बारे में बात कर रहे थे, उनका मेरे से डबल है. सो व्हेन आई वाज एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, in real he's a very gentle person. After every take he would come and he would ask me, was it good, are you okay? But when we were shooting for the film, during the scenes, I used to get scared because that's how the father is in the film, right? And the only way you enhance your co-actor's acting is by doing something, right? So it reflects. The way I could act, that was only because of the way he acted. So that's give and take, that relationship that we formed of actors during the set, I think that was the biggest learning. And आपस में आप लोगों की bonhomie कैसी है? Because you guys are young lads on one set. Were there fun moments, a lot of laughs, मस्ती? मतलब मेरे को लगता है ऐसे काफी सारे मतलब ऑन सेट मोमेंट्स भी थे जहाँ पे मतलब सीन चलते सीन के बीच में, जैसे कुछ सीन्स हैं फिल्म में, कुछ कट गए हैं चलते में, इट इज सो मच डिफिकल्ट टू कंट्रोल के यार अच्छा भी मस्ती बंद कर लें और काम पे आ जाते हैं. क्योंकि मेरे को लगता है उसमें क्या होता है, आज को एक्टर्स हमें एक दूसरे की ओरिजिनल पर्सनालिटी भी पता होता है, और जब आप प्ले कर रहे होते हो वी नो कि अच्छा ये बंदा इतने चेंजेस लाके उस चीज़ को प्ले कर रहा है, तो वो हमें और ज़्यादा ह्यूमरस लगता है कि अच्छा यार तू भी ऐसी चीज़ें बोल सकता है, कर सकता है. So कुछ ऐसा हुआ सेट पे कि मतलब आप लोग भूल गए कि भाई सीन क्या है एंड यू गाइस जस्ट केप्ट ऑन लाफिंग? हाँ मतलब काइंड ऑफ कई बार ऐसे, मतलब क्योंकि टीम सारी नई थी तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि
लाइटिंग वालों की कैमरा से कुछ हो गया। हम सीन दे रहे हैं, हमें ये पता लग रहा है कि कैमरा तो ऑन है बट कैमरा मैन नहीं है, पीछे लड़ाई चल रही है। तो मतलब बहुत बहुत फनी इंसिडेंट्स थे ऐसे अपनी पिक्चर में ना। एक इंसिडेंट ऐसा था कि कुछ DIT का कुछ इशू था, तो जो पूरी रिकॉर्डिंग थी वो ले गए, वो गायब। और हमें पता लग रहा है कि भाई रात को जब हम सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता लग रहा है कि जो पूरा दिन आज हमने शूट किया है वो है ही हमारे नहीं। पास है ही नहीं। तो ऐसा था। रात और के 1-2 बजे कोई किसी हाँ, का डोर फिर- खटखटा रहा है, कोई किसी का कि यार वो लेके आए फुटेज। जो लाइन प्रोड्यूसर वो थे वो फिर गए 4 बजे आए, जब तक वो आए नहीं तब तक सबके अंदर एक वो कि भाई ये क्या हो रहा है, चोर डाकू टाइप सिस्टम हो गया है। और 3 लोग होते हैं तो फिर 3 में होता है कि कभी मैं और ये मिलके इसकी खिंचाई हो गई, ये और मैं मिलके इसकी खिंचाई हो गई। ये क्योंकि मेरे से काफी यंगर है आर्यन, और मैं फिर भी थोड़ा सा एक रेट, तो ये जो बातें करते हैं उसमें कई बार अपने को होता था कि हमने भी ये सब करा है, तो अब दिखता है कि वो छोटा बचपना क्या हो, चाइल्डिश टाइप। बट स्टिल वी जेल्ड अप क्वाइट वेल। मतलब ऐसा कहीं आया नहीं कि हमें कुछ रेजिस्टेंस फील हो रही है या कुछ, तो बहुत इजीली डिलीवर हो गए सारे सीन्स जो हमारे कलेक्टिवली थे ना। तो मतलब मूवी में काफी कॉमेडी जो आई है वो नेचुरली आ गई, जो हमने आपस में जो हमारी केमिस्ट्री होने की वजह से कुछ सीन्स ऐसे लिखे नहीं थे, बट हमने कुछ न्यूएंस इसने दिया, कुछ मैंने दिया, वो डिलीवर इतना अच्छा हुआ कि मतलब कल हमारी एक स्क्रीनिंग थी तो उसमें वो बहुत हंस रहे थे, जो हमें पता है कि वो पार्ट ऑफ द फिल्म नहीं था। So it delivered quite well because of the chemistry we had. Also, the credit also goes to Ankur because he gives you the space to sort of experiment. Yeah. So he knew कि हम तीनों की ना bonding बन गई है. So let's say अगर कोई ऐसा सीन है जो लिखा नहीं गया, एक बाइक सीन है जो लिखा नहीं गया जब ये लोग मुझे लेने आते हैं, right? And उसमें कोई dialogues नहीं थे, तो Ankur was like improvise कर लो. And then he started, I followed, and then he followed. So that sort of became like a, you know, एक थिएटर में जब हम करते हैं, जब हम थिएटर like college वगैरह में करते हैं, तो सब improv करने लगे, and that makes the scene beautiful, and that bond that we have in real translates to the screen. Have you had any experience with theatre? एक्चुअली थिएटर की वजह से मुझे फिल्म मिली बिकॉज द डे आई वेंट टू टिगोर थिएटर इन Child सेक्टर labor. 18 और वहाँ पे मैं ग्रुप्स को एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे सुनने में आया ऐसे ऑडिशन हो रहा है। Okay. तो मैं पता ही करने गया था कि कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करूँ, और तभी ऑडिशन के बारे में पता लगा, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड एंड नाउ वी आर हियर। तो मेरी तो पूरी मास्टर क्लास ही ये फिल्म है। और फिल्म की शूटिंग के बाद मैंने कुछ थिएटर करा, कुछ प्लेस करे, बट उससे पहले कुछ खास नहीं था स्कूल थिएटर के अलावा। And हम भी इतने बड़े नहीं हैं, मतलब हम भी छोटे हैं। छोटे हैं बट वो सबसे छोटे हैं। But हाँ, मेरी भी ये फर्स्ट फिल्म है, तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एंड it was like a master class, जैसे उन्होंने बोला, it's like a film school, and we have such veteran actors जो हमारे parents play कर रहे हैं, and then even शिवम भाई, कबीर, before take they used to tell me, आर्यन हो जाएगा, चिल कर। I used to be very कि अरे ये कर लेते हैं, रिहर्सल कर लेते हैं, शिवम भाई ऐसे कंधे पे रखते थे, हो जाएगा, टेंशन नहीं, and then वो हो गया, so that helped. एंड अंकुर सर ऑल्सो मतलब उन्होंने काफ़ी पुश ये करा कि मूवी जितनी ऑर्गेनिकली दिखे ना उतना अच्छा है। फॉर एग्जांपल को ही जो मेरे ब्रदर प्ले कर रहे हैं, तो जब हम जैसे 1-2 दिन शूट से 1-2 दिन पहले के लिए हमें ब्रीफ करने के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया था, जो मेरी फैमिली है चारों की, तो टू मेक आवर केमिस्ट्री मोर स्ट्रॉन्गर, तो ही फोर्स्ड मी टू स्टे इन द सेम रूम विद माई ब्रदर whom I don't know. बट वेन वी बोथ स्टेड टुगेदर वी जेल्ड अप अ लॉट, और मैं इतना मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो वो आफ्टर जब हम मतलब वो टाइम बीत गया, उसके बाद जब मूवी हमने करी ना, तो वो हम ब्रदर वाला बॉन्ड फील कर पा रहे। तो मतलब उन्होंने ना बहुत ऑर्गेनिकली पुश करने की चीज़ करी कि जितना ऑर्गेनिकली ये मूवी बने ना, मतलब he gave more concentration on acting rather than जैसे बाकी चीज़ों पे लोग फोकस करते हैं VFX या ये जो भी, उन्होंने ज़्यादातर नेचुरल और ऑर्गेनिक, जितनी अच्छी एक्टिंग निकल के आएगी उतनी मूवी और बढ़िया बनेगी। तो इस करके हम लोगों ने और मतलब अपने आप ही एक्टिंग और सीखी है। मतलब हमने कई सीन में 26 टेक्स दिए हैं, मतलब टिल 4:30 तक वी वर गिविंग टेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 11, जब तक सन राइज नहीं हो रहा ना तब तक ही हैज टेकन शॉट्स कि भाई करते रहो, कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ। तब वी हैव गिवन अ लॉट एंड ही हैज आल्सो गिवन अ लॉट इन द फिल्म। तो एंड रिजल्ट देख के क्या-क्या इमोशंस आए थे सब? एंड रिजल्ट देख के मैं अपना बताता हूँ आपको, मेरा बहुत वो था, मैं अपनी फैमिली के साथ चंडीगढ़ गया था, तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स थे, और दिल्ली का हूँ मैं, तो दिल्ली में फ्रेंड्स मौका ढूंढते हैं कि कब मौका है और टांग खींचो, पार्टी तो बात की बात कि टांग खींचने को मौका मिल जाए, कि मजाक उड़ाया जाए। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, मतलब मेरे को काफी स्टमक इन्फेक्शन भी काइंड ऑफ हो गया था।
तो मैं फैमिली वगैरह के साथ था, तो मैं बहुत नर्वस, और लिटरली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो कैरेक्टर इतना हो जाता था, तो आई वाज फीलिंग कि गौरव अरोड़ा सही में बैठा हुआ है और वो पिक्चर चल रही, तो मैं बहुत नर्वस था पिक्चर। और जब शूट भी हो रही थी तो पता नहीं होता ना कि क्या डिलीवर होगा। पिक्चर जब खत्म हुई, मैंने आसपास देखा तो लोग रो रहे थे, मतलब देयर वर टीयर्स इन पीपल्स आईज। एक मेरे साइड में बैठा था, वो बहुत रो रहा था। कुछ सीन्स ऐसे आते हैं आगे जाके, तो और मेरे को भी मतलब आई वाज डम स्ट्रक कि भाई ये कैसे बन गई इतनी अच्छी। ये मैं रियल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि मतलब आप मूवी अच्छी बनती है, बट इतनी अच्छी फिर एक हो जाता है ना कि अरे वाह ये तो बहुत सुंदर बन गई। तो वही रिएक्शन रहा कि लोगों ने बहुत मतलब 30-45 मिनट्स तक Q&A चला लोगों का, इतना इंटरेस्टेड थे। और नॉट इवन 1% लेफ्ट सिनेमा हॉल, नॉट इवन 1%। पौड़ियां तक भरी हुई, हाँ, मतलब सीढ़ियों पे बैठे हुए थे लोग, आइल्स पे बैठे थे। We were fully packed for 2 days, मतलब बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी है वो भी इतना मतलब एनग्रॉसिंग है ना कि लगता है कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मस्त, मतलब बहुत बढ़िया मूवी थी। क्योंकि हमने एडिट वगैरह कुछ भी नहीं देखा था, हमें सीधा फिल्म ही दिखाई थी। मेरे को पर्सनली ये नहीं क्योंकि मैं हूँ, जनरली वहाँ पे लोगों ने ये रिएक्शन दिया, तो मतलब वी वर वेरी हैप्पी। मैंने तो फिल्म बैठ के नहीं देखी क्योंकि मैंने आयल से ही देखी थी जब चंडीगढ़ में स्क्रीनिंग हुई थी, एंड कल भी मैंने भारी था, मैं ज्यादा अपनी देख नहीं पाता, बट द रिएक्शन दैट वी हैव रिसीव्ड, आई मीन even my family was surprised कि तूने कर ली है, कैसे कर ली so and that sort of gives you the validation कि कुछ तो सही किया है। and also I think जैसे शिवम भाई ने बोला कि लोग रो रहे थे, the film is not just about कि हाँ ये चीज सीरियस है, ये फादर्स ऐसे ही बिहेव करते हैं, बहुत ही लाइफ के about film है, राइट? कि it's about life, not just the bond between fathers and sons, but the decisions that you take. मतलब फैमिली का जो रिलेशन है ना, मतलब जैसे हम जब में ही होता है कि फादर को समझाने मतलब बेटे का पर्सपेक्टिव मम्मी जाती है, तो वो जो रास्ता है ना, वो बहुत अच्छे से इस मूवी में तीनों स्टोरीज में दिखाया गया कि वो क्या समझाना चाह रहा है और वो क्या तुमसे चाह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से मूवी में कवर किया, जो मतलब बहुत कम मूवीज में दिखाया है। And ये after you leave the theater, I'm telling you, it will feel like a warm hug. It's like a warm hug. और कि मेन हाँ, चीज बोल रहे हैं, तुम लोग को मतलब बहुत टाइट किसी ने गले लगाया और जो वैसी फिल्म है। यूएसपी हमारी फिल्म की वो है कि 90s हम सब ऑलमोस्ट हम 29 हम सब 90s वाले हैं। वो जो होता है हैप्पी मेरा नहीं बर्थडे, बताओगे आप? नहीं मैं हम सबका बताओ। बोला। तो वो 90s से जो रिलेटेबिलिटी है ना, जो उस टाइम पे बर्थडे पार्टीज होती थी, जैसे अब तो मैकडी केएफसी में टाइप्स होते थे, अब वहाँ पे जो घरों में होती थी वो सब एनवायरनमेंट, वो जो वीसीआर होता था, तो वो पूरा मतलब आपको ये लगेगा कि वो आप एक प्लेट में समोसा, एग्जैक्टली नमकीन, समोसा, टॉफी केक, and all। चाउमीन और चिप्स, वो जो आइकॉनिक था। बहुत खाए वहाँ पे। और उस टाइम पे जो वेडिंग्स वगैरह जो उनकी वीसीआर होती थी, जैसे कमल में आ रहे हैं शादीशुदा कपल, तो मतलब एकदम प्रॉपर आप रिलेट Nostalgia करोगे, create यू विल है। बी इन द नॉस्टैल्जिक जोन ऑफ 90s और टोटल। जब वो यूएसपी हमने है। अभी जो स्क्रीन्स करी उसमें देखो, ये नहीं है कि अपना बच्चा तो सबको अच्छा ही लगता है, बट ऑडियंस इतना ज्यादा जेल्ड अप थी ना इमोशंस के साथ, बी इट ह्यूमर, कोई मतलब सैड है, कोई और इमोशन चल रहा है जहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं, एक एक सीन आप फील करते हो कि सब लोग मतलब एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग के अंदर उस चीज को एंजॉय करते हैं। Exactly. सब हंसते भी एक साथ हैं, रोते भी एक साथ हैं, और जब कोई सीरियस सीन है वो चुप करके बैठ हाँ। जाते हैं, आगे आके देखते हैं अच्छा, देन दे कम बैक, ओह दिस। एंड मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करा है, जब कोई थोड़ा कुछ भी शॉकिंग होता है, पीपल आर लाइक हाँ, आवाज ओए पड़ी ऐसे टाइप। और यही चीजें मेरे को लगता है एज एक्टर या फिर जो भी लोग फिल्म से रिलेटेड है, उन्हें खुशी देती है कि जिस इमोशन से हमने लिखा या करने की कोशिश करी वो डिलीवर हो इट डिलीवर्ड, लैंडेड वेल, बिल्कुल। मतलब जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी वो हो गई। मतलब That's really nice. And help me understand, you three met for the first time on the sets, right? yeah. But your Bonhomie looks like that you have been friends for years. So it actually looks like that. because we shot in Chemistry. 2023 and we kept on asking each other कि कब रिलीज होनी है, तो उसकी जो नैगिंग और जो वो होती है ना कि कब आना है, ये सब तो करते कराते वो हो ही गई बॉन्डिंग अच्छी खासी। वी ऑल स्टेड टुगेदर इन द सेम होटल, द होल क्रू, फ्रॉम डायरेक्टर, एक्टर्स, आर्ट डायरेक्शन, तो वो पूरी टीम की जो मतलब वो कह लो केमिस्ट्री है ना, वो सेम है। मतलब अगर हम कोई और भी आए होते ना तो वो सेम ही लगती, हम सब सेम उस पे थे, क्योंकि सारा जो क्रू था सब यंग था, तो देयर वाज नो हायरार्की और एनी सीनियर जूनियर टाइप्स, तो वी जेल्ड अप quite मतलब And good level. We had a lot of debutants, not just in actors but like in the crew also. In each and So every department. everyone was like कि हाँ अगर किसी से कुछ मिस हो रहा है
तो दूसरा बंदा आके उसकी हेल्प कर रहा है। हम्म। अगर एक्टिंग में हमसे कुछ छूट रहा है तो तो क्रू कोई का और बंदा, बता क्योंकि रहा है। एक्सेसिबिलिटी है, देयर इज नो, जैसे इन्होंने बोला कोई हायरार्की नहीं थी, और इवन अंकुर वाज लाइक कि हाँ मतलब इट वाज लाइक अ प्लेग्राउंड कि सब लोग ना आके खेलने आए हैं, एंड देन इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल फुटबॉल मैच एंड सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सो अगर वही जो अगर यहाँ पे अंकुर भी होते या फिर कोई क्रू का मेंबर भी होता, आपको लगता कि ये तो सब एक जैसे सेम। जबकि जब शूट कर रहे थे तब पर्सनली इतनी अच्छी नहीं थी जितनी स्क्रीन पे दिख रही है, ये भी एक फैक्ट है, वो तो अब हो गई, बट जब कर रहे थे तब उतनी अच्छी नहीं थी, बट दिख बहुत अच्छी रही है वो। धीरे धीरे होता है। हाँ, तो वो देख के अब लग रहा है कि हाँ मुझसे दोस्त हैं। हम दोस्त हैं, कंफर्मेशन आ भाई है, गया। भाई है। So from the actor's perspective, I really want to know because you said that you guys shot way back. Yeah. And then the film got stuck because of some reasons. The edits might be happening. तो वो एक anxiety जो रहती है एक्टर के मन में ना कि यार शूटिंग हो गई है. Because I've spoken to a lot of actors who have told me that you know I shot this way back, I shot this way back, and there was uncertainty whether this film will see the light of the day or not, well whether it will come out or not. तो वो एंजाइटी कैसे टैकल आउट करते हैं बिकॉज यू गाइज आर वेरी यंग एंड फिर ऐसा लग रहा था कब आएगी बट आई फील थोड़ा मतलब एक कम्युनिकेशन होता रहता है जैसे टीम के साथ कि अच्छा चीजें चल रही हैं, हम भी पेशेंटली तभी बैठे रहते हैं बिकॉज वी आल्सो अंडरस्टैंड कि एक अच्छा प्रोडक्ट तभी निकलेगा जब उस पर पेशेंटली काम होगा। तो अगर हम बैठे रहे हैं तभी आज एक अच्छी चीज बन के आई है, अगर हम जल्दबाजी में उसको कहीं भी कर देते डब्ल्यू तो खिच पिच हो जाता एग्जैक्टली मेरा सेम थॉट है मुझे। प्लस वही एक डर रहता है क्योंकि मतलब मैं तो काफी टाइम से मतलब क्योंकि प्रोजेक्ट्स करे हैं और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं सबका मिनिमम 8 मंथ्स डिले तो रहा ही है, जितने भी रहे हैं। तो वही है कि वो मतलब करना ही पड़ता है, वी हैव टू डील विद इट, इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि मूवी इतनी जल्दी वैसे भी नहीं बन सकती। बट वही होता है कि कई बार डर ये होता है क्योंकि हमने जैसे आपने कहा एक्टर से सुना है मेरी मूवी शेल्व हो गई या वो नहीं हो रही, कहीं से थम्स अप नहीं आया, ये वो तो वो डर रहता है जब तक मतलब मुझे अभी भी है कि जब तक वो 1 अगस्त को नहीं होती टिल फिंगर्स क्रॉस्ड रखना ही पड़ता है मतलब वो। और एंजाइटी तो होती है जब वो वेट करना पड़ता है ना, जैसे 3 साल, बिकॉज जैसे मेरी भी भाई की भी पहली फिल्म थी, आप और बहुत सारी नई चीजें सीखते हो, यू ग्रो एज एन एक्टर, एज एन पर्सन। तो जब वो एंड रिजल्ट आप देखते हो आपको बिल्कुल एक थोड़ी कमियां लगती है, यार अच्छा मैं ऐसे कर लेता वैसे कर लेता। तो वो टाइम आपको इन चीजों के थ्रू भी लेके जाता है, जो मतलब सेल्फ डाउट है, सेल्फ क्रिटिसाइजेशन है, तो वो चीजें रहती हैं। एंड गुड थिंग्स टेक टाइम, सो आई थिंक जैसे इन्होंने बोला इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड आई फील हमारा काम एज एन एक्टर सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है, इट्स ऑल्सो एक्टिंग इज अ लॉट ऑफ वेटिंग। आई फील इवन ड्यूरिंग शूट हम शूट करने सिर्फ 5 मिनट जाते हैं, अगर एक बहुत बड़ा सीन भी है 5 मिनट की शूटिंग होगी, द रेस्ट ऑफ इट इज वेटिंग, ऑब्जर्विंग। सो वही ट्रांसलेट होता है तब भी जब फिल्म डिले हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है। एंड आई फील द क्रू वॉज सो सपोर्टिव कि थ्रू आउट हमें अपडेट्स मिलते रहे थे। जैसे अली भाई, मुबशिर अली जो हमारे एडिटर भी हैं, ही यूज्ड टू कीप शोइंग मी रशेस कि यार ये देख ये ऐसा सीन है, ये ऐसा सीन है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कुछ बन रहा है एंड समथिंग गुड इज कमिंग। एंड थ्रू आउट जो भी अगर कोई इनके पास भी कोई प्रॉब्लम होती थी या कुछ होती थी तो दे यूज्ड टू लाइक मुबशिर यूज्ड टू कॉल मी अप एंड बोलते थे यार ये हो गया वो हो गया। एंड he told me one day that Aryan, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट उनका भी फर्स्ट प्रोजेक्ट ही है मेजर, and he said कि आर्यन ये चीज़ें अच्छा हुआ फर्स्ट प्रोजेक्ट में हो गई, क्योंकि अब वी आर प्रिपेयर्ड कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, मे बी सेम चीज़ें बाद में भी होंगी, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन फेस दैम। So I think घिच पिच सिर्फ फिल्म में नहीं होती, फिल्म के बाहर भी होती है काफी। Absolutely. And I think Ali bhai really deserves a shout out because of the work he has done, and मतलब सिर्फ उन्होंने वो काम नहीं करा जो उनको असाइन था, मतलब सब कुछ जोड़ के रखने का काम करा, and he really deserves applause. That's really sweet. That's really sweet. And last but not the least, I would like all 3 of you to make the request to the viewers, why should they be watching your film? And I would also like to wish my, all the luck that you guys see only success from here on. All the very best. And just quickly, if you can request the viewers to watch Khij Pich. So hi everyone, प्लीज़ बिना किसी घिचपिच के जाके घिचपिच को देखिए। एक बहुत ही प्यारी फिल्म है जिसमें आप खुद को भी ढूंढेंगे, अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को भी देख पाएंगे, उसके साथ रिलेट कर पाएंगे, और बिकॉज इट्स ए कमिंग ऑफ एज फिल्म, जो टीनेजर्स हैं या फिर जो टीनेज में थे, आपको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी की एक झलक मिलेगी। तो प्लीज़ गो एंड वॉच घिचपिच। गाइस घिचपिच देखने ज़रूर चाहिए। अगर आप लोगों को एक 90s का टच और एक 90s का जो नॉस्टैल्जिया अगर आप मिस करते हैं
तो वो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। एक 3 दोस्तों की जो मूवीज़ आप लोग देखते आ रहे हैं, एक फन होता है, उसमें कॉमेडी होती है, वो कॉमेडी देखने को मिलेगी। और सिनेमा लवर्स को जो एक्टिंग पसंद है, जो एक्टिंग और इमोशंस, एक ड्रामा जो हार्ट को फील होने वाली जो एक्टिंग और इमोशंस होते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेंगे। आप प्लीज़ घिचपिच देखिए थिएटर्स में। It's a film that we have made with a lot of love, sweat and even some blood. But ये एक ऐसी फिल्म है जो हमने ट्राई किया है कि हम एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा और जो हमारा इंडी सिनेमा है उसका एक मिक्स है ये। मतलब आपको वो रियलिज्म, वो नेचुरल ऑथेंटिसिटी जो होती है एक फिल्म की, वो भी दिखेगी, बट एट द सेम टाइम आपको मज़े आएंगे, आपको लाफ्स आएंगे, आपको क्राइज आएंगे। सो इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड प्लीज़ गो वॉच घिचपिच। इट्स माई फर्स्ट फिल्म, इट्स कबीर्स फर्स्ट फिल्म एंड इसमें शिवम भाई हैं, सो प्लीज़ जाइए। एंड हमारे डायरेक्टर की भी फर्स्ट फिल्म है, सो प्लीज़ जाइए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।